Good morning to all and respected jury member. My project name is Natural Healthcare Center, Panchkula. Brief about Natural Healthcare Center. Naturopathy is an art and science of healthy living and drugless system of healing, which does not imply any kind of medicine. Naturopathy uses the body capacity to heal itself and treating the diseases at the root level with specific measures to enhance health and prevent diseases. Different types of treatments are provided. Study number 1. Sanjeevani Kaya Shodhan Sansthan. Location inside Ram Sharanam Ashram, Gohana, Sonipat. Total plot area is 50 acres and site area is 10 acres. My aim for selecting this case study because I want to analyze the treatments and how the patient spent a day in a nature cure. To study zoning, site planning, parking, and landscaping. This is the residence block. This is the main treatment block, Kerala therapy block. Study number 2. Bapu Nature Cure Hospital and Yoga Ashram, Delhi. The site area is 2.35 acres. The building is designed according to the site constraint. This is the main entrance. This is the service entrance, the main treatment block, physiotherapy department, canteen area. These are the requirements and its areas. Floor finish materials and yoga hall, partition walls and roof study. My case study number 3 is Krishna Dutt Healthcare, New Delhi. The plot size is 15 acres and the health center is 4 acres. The planning is very simple. Comparative analysis and some inferences are taken from these case studies. First, all blocks should be proper connected. Second, locally materials should be used in this design. Third, parking should be at the near entrance so that all site area is pedestrian friendly. Fourth, water helps to heal diseases, so it is very important factor. So, the site area is 12.22 acres. About the site, climate of Panchkula is warm and temperate. Soil type, sandy soil. Water table 150 feet down. Foundation suggested isolated footing. Site surroundings. Here is the Gaggar River. Zirakpur Kalka Highway. This is my site and this road 12-meter wide. My design objectives are ऐसे स्पेसेस प्रोवाइड करना जहां लोग अपने आप को रेजुविनेट फील कराएं और बाहर के स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ दें एंड नेचुरोपैथी सेंटर की रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिन ब्लॉक ओपीडी ट्रीटमेंट ब्लॉक एग्जीबिशन ब्लॉक रेजिडेंस ब्लॉक डाइट सेंटर these are some flow charts of exhibition block admin block and therapy block the connectivity diagrams ये मेरी एग्जिस्टिंग साइट है और जो ये ग्रीन एरिया आप देख रहे हो ये पूरे एग्जिस्टिंग ट्रीज हैं वहाँ पर एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं कुछ वहाँ पर योगा हॉल है जो 2-3 साल पहले बना है और उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है तो इसको इसलिए मैं रिटेन करके रख रही हूँ ओएटी है इसको भी रिटेन कर रही हूँ और 2 बिल्डिंग्स हैं ऑफिस हैं आयुष डायरेक्टर्स के एंड ऑफिस ऑफ चेयरमैन
बट इनकी कंडीशन काफ़ी साल पहले ये बनी थी तो बहुत ख़राब है, तो इनको मैं नहीं ले रही हूँ डिज़ाइन में अपने। ये टेम्परेरी मेडिकल हट्स हैं। एंड जो मेरी प्लानिंग है वो इस हिसाब से मैंने लैंडस्केपिंग की है ताकि जो ट्रीज हैं वो कम से कम मतलब मिनिमम कट हो मेरे। एंड जहाँ से मैं ग्रीन पैच को कट करूंगी वो मैं यहाँ पर रीप्लांट करूंगी। जो मेरे डिजाइन एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट मैंने ट्रेडिशनल प्लानिंग ली है, कोर्टयार्ड प्लानिंग ऑफ एडमिन ब्लॉक एंड एग्जीबिशन ब्लॉक एंड एज वेल एज रेजिडेंस ब्लॉक। सेंटर पॉइंट दिया है, जो 3 पार्ट्स का कॉन्सेप्ट मैंने दिया है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। कैंपिंग एरिया दिया है, मेडिटेशन हट्स दी हैं, परगोलास दिए हैं फॉर सिटिंग शेड एंड कंफर्ट। दिस इज माय कॉन्सेप्ट शीट 2। ये है 3 पाथ कॉन्सेप्ट। जो मेरा पाथ योगा हॉल की तरफ जा रहा है उसको मैंने नाम दिया है पाथ ऑफ डिवोशन। ट्रीटमेंट ब्लॉक की तरफ और ओपीडी ब्लॉक की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसको मैंने पाथ ऑफ एक्शन दिया है नाम। एंड थर्ड पाथ जो एडमिन एंड एग्जीबिशन ब्लॉक की तरफ जा रहा है उसको मैंने पाथ ऑफ नॉलेज बोला। डाइट सेंटर, ट्री हाउसेस, मटेरियल ब्रीफ। ये कुछ स्केचेस हैं कॉन्सेप्ट के लिए। एंड मैंने सेमी सर्कुलर शेप लेकर उसके बाद उसको लेवल्स में प्ले करके ओपन स्पेस निकाला एंड देन अपनी ट्रीटमेंट ब्लॉक एंड ओपीडी ब्लॉक की शेप निकाली। परगोलास, they they provide us sitting shade and comfort, camping and bonfire area. ये प्रपोज साइट प्लान है। साइट एरिया कैलकुलेशंस, permissible FAR is 1.5, permissible ground coverage is 27%, achieved ground coverage is 6.58% and achieved FAR is 0.1. ये मेरा पार्किंग स्पेस है एंड द 3 paths, one path to yoga hall, second path to OPD and treatment block, and third path is admin to exhibition block and residence block. पार्किंग के बाद सीधा सबसे पहले एडमिन ब्लॉक में पेशेंट जाता है, अपना रजिस्टर करवाता है अपना एडमिशन। उसके बाद एग्जीबिशन ब्लॉक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों में अवेयरनेस नहीं है नेचुरोपैथी के बारे में। सो एग्जीबिशन ब्लॉक में सारा डिस्प्ले होगा बुक्स का एंड आयुर्वेदा के बारे में सारी जानकारी वो यहाँ से उससे मिलेगी। एंड ये रेजिडेंस ब्लॉक है, डाइट सेंटर, जहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलेगा बिकॉज नेचुरोपैथी में जो भी आता है वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं आता, उसको सब कुछ यहीं प्रोवाइड किया जाता है। एंड दीज आर द थेरेपी हर्ट्स। ये पाथवे मैंने इसीलिए ऐसे दिया है बिकॉज नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर में एक शेड्यूल फिक्स होता है। सबसे पहले सुबह 5 बजे सत्संग प्रोग्राम होता है जो ओपन एरिया में भी हो सकता है, ओएटी में, या फिर अंदर एक रूम प्रोवाइड किया है सत्संग रूम। उसके बाद योगा सेशन होता है एंड देन ब्रेकफास्ट। उसके बाद ट्रीटमेंट होता है 9 to 12 एंड फिर लंच होता है एंड देन ट्रीटमेंट अगेन। उसके बाद एक एक्टिविटी होती है स्लो वॉकिंग की। सो ये पाथ मैंने इसीलिए दिया है ताकि वो जो पेशेंट्स है चाहे कोई भी हो वो यहाँ पर जा सकता है आराम से। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स होते हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटी प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो वो कहीं पे भी ओएटी में भी हो सकते हैं या फिर बॉनफायर एरिया के पास भी हो सकते हैं। एंड म्यूजिकल फाउंटेन एक सेशन होता है इवनिंग के टाइम पे। उसके बाद डिनर होता है एंड देन अगेन द शेड्यूल इज स्टार्ट। दीज आर द साइड सेक्शंस। ये मैंने कुछ लैंडस्केप स्टडी की है फ्लावर्स के बारे में और ट्रीज के उनके फॉलिएजेस के बारे में। सो ये एक लैंडस्केप प्लान मैंने बनाया है। दीज आर द लैंडस्केप फीचर्स ब्लो अप्स।
यहाँ मैंने लैंडस्केपिंग में लेवल्स के साथ प्ले किया है। ये 300 mm लेवल है, प्लस 600 प्लस 900, एंड ये 3 पाथ्स हैं: पाथ ऑफ डेवोशन, पाथ ऑफ एक्शन एंड पाथ ऑफ नॉलेज. These are the views of Yoga Hall, OAT, Diet Center, entrance point and the landscaping point. ये मेरा पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकुलर सर्कुलेशन प्लान है. सारी साइड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली है एंड ये एरिया सिर्फ व्हीकुलर के लिए है. और इन केस ऑफ फायर टेंडर, तो ये पाथवेज है 4 मीटर वाइड है, तो इसमें आसानी से फायर टेंडर जा सकता है. ये मेरे गेट का डिज़ाइन है. एक नेचुरल फील देने के लिए मैंने नेचुरल मटेरियल्स यूज़ किए हैं, स्टोन किया है यूज़, एंड वाटर बॉडी दी है एंट्रेंस पर. ये मेरा एडमिन ब्लॉक का ग्राउंड फ्लोर प्लान है. इस तरफ मेरा एडमिन ब्लॉक है, इस तरफ एग्जीबिशन ब्लॉक. एडमिन ब्लॉक पे रिसेप्शन एरिया है, विजिटर्स लॉन्च है, कॉन्फ्रेंस रूम विद अटैच्ड पेंट्री एंड टॉयलेट्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स. स्टाफ ऑफिस है एंड 2 ऑफिस दिए, एक डायरेक्टर ऑफिस विद अटैच टॉयलेट एंड सेम विद ऑफिस ऑफ चेयरमैन, रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार सर. सिक्योरिटी ऑफिस दिया है एक. एंड एग्जीबिशन ब्लॉक में सेम रिसेप्शन एरिया, विजिटर्स लॉन्च एंड टॉयलेट्स. यहाँ से एंट्रेंस होगी, लाइक यहाँ से और यहाँ तक एक पूरी जर्नी. यहाँ पर पूरा डिस्प्ले होगा प्रोडक्ट्स का, आयुर्वेदा बुटीक, योगा बुटीक, यूनानी एंड सिद्ध बुटीक, होम्योपैथी बुटीक. और एंड में अगर किसी को खरीदना है कुछ आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स होंगे, वो यहाँ पर सेल किए जाएंगे. सो ये यहाँ पर सेल काउंटर दिया है एंड सम स्टोरेज एरिया, मैनेजर्स रूम. Roof plan of admin block and exhibition block. These are the elevations of admin block and exhibition block. This is the view and these are the sections. Blow up of the sections. इसका स्पैन 4500 है, तो मैंने होप्टर्स डिजाइन लिया है इसका. एंड कॉटेज प्लानिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, बिकॉज जो कूल सर्कुलेशन है कूल एयर का, वो काफ़ी अच्छी तरह से होता है, एंड जो हॉट एयर है वो यहाँ से बाहर चली जाती है. सो ये सेक्शंस हैं और ये ब्लो अप है होप्टर्स डिज़ाइन का, कंस्ट्रक्शन डिटेल का. उसके बाद ये है ओपीडी का ग्राउंड फ्लोर प्लान. यहाँ से रिसेप्शन एरिया डबल हाइटेड है एंड वेटिंग एरिया दिया है, और अलग अलग कंसल्टेंट रूम्स दिए हैं, बिकॉज पेशेंट जब रजिस्टर करने के बाद वो उसको एक कंसल्टेंट दिया जाता है जो उसको बताता है कि उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड वो अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट कर सकता है थेरेपी से. तो ये 7 जो कंसल्टेंट रूम्स दिए हैं, 8. एंड टॉयलेट्स आर अकॉर्डिंग टू द एनबीसी स्टैंडर्ड्स. एनिमा रूम दिया है, अटैच टॉयलेट. अल्ट्रासाउंड रूम भी यही दिया है, बिकॉज जो रिपोर्ट्स होंगी वो पेशेंट यहाँ से करवा सकता है अपना ट्रीटमेंट. ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है. फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ स्टाफ की एंट्री है एंड रिसर्च लैब्स दी हैं एंड मेकिंग ऑफ आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, बिकॉज नेचुरोपैथी सेंटर में वो सब कुछ अपना खुद बनाते हैं, चाहे वो ऑयल्स हो चाहे मड पैक्स हो. एंड रिसर्च लैब, बिकॉज जो आयुर्वेदा की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, और जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए एंड रिसर्च होती है यहाँ पर. तो ये इसलिए दी है यहाँ पर. ये ओपीडी ब्लॉक का रूफ प्लान है. एंड जो ये परगोलास दिए हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं हमें. एंड ये मैंने कनेक्ट किया है ओपीडी एंड इन ट्रीटमेंट ब्लॉक के साथ. दीज आर द सेक्शंस. एंड जो मैंने डबल हाइट इसीलिए दिया है बिकॉज डबल हाइट स्पेस हमें एक ह्यूज ग्रैंड फीलिंग फील करवाता है. एंड जो क्लियर स्टोरी विंडोज दी हैं एट द एंड ऑफ द ट्रस, जो ट्रस की डिटेल है वो आगे से जो उसका स्पैन है वो कम है एंड पीछे उसका स्पैन बढ़ता है,
तो उसके अकॉर्डिंग ट्रस्ट को मैंने लिया है, किंग पोस्ट ट्रस्ट को। एंड बिकॉज किंग पोस्ट ट्रस्ट लार्ज स्पेंस के लिए यूज होती है। एंड ये रिसर्च लैब्स एंड मेकिंग ऑफ आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स रूम एंड ये सेक्शंस हैं। एंड ये पूरी डबल हाइटेड है। एंड यहाँ से स्टेयर्स चढ़कर यहाँ एक बालकनी प्रोवाइड की है, यहाँ पर खड़े होके हम नीचे देख सकते हैं। सो ये वाला जो स्पेस है पूरा डबल हाइटेड है एंड ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। These are the elevations of OPD block and ट्रीटमेंट ब्लॉक का ग्राउंड फ्लोर प्लान। सो ट्रीटमेंट ब्लॉक में ऐसा होता है कि दो सेक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं, एक फीमेल सेक्शन एंड मेल सेक्शन। पूरी प्राइवेसी होती है। एंड यहाँ से मेरी एंट्रेंस है एंड रिसेप्शन एरिया। एंड इस साइड फीमेल सेक्शन है, इस साइड मेल सेक्शन। एंड कंसल्टेंट रूम दिया है। बाकी जो रूम्स हैं उसमें सारी थेरेपीज हैं अलग अलग, फुट एंड आर्म बाथ, जेट स्प्रिंकलर बाथ रूम एंड स्पाइनल बाथ, जल नेति कुंजल रूम है, सोना एंड स्टीम रूम है, टॉयलेट्स हैं, चेंजिंग रूम्स मसाज रूम्स के साथ हैं एंड हिप बाथ रूम है। सो ये सारा सेम है, मेल सेक्शन एंड फीमेल सेक्शन। दिस इज द व्यू ऑफ ट्रीटमेंट ब्लॉक कंसेप्चुअल 3D। हट्स हैं एंड ये एंट्रेंस है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर है अलग अलग थेरेपीज हैं, योगा हॉल दिया है एंड राग थेरेपी रूम दिया है एंड अलग अलग थेरेपीज हैं ऊपर भी। एंड ये स्पेस मैंने ऊपर डबल हाइटेड दिया है नीचे एंड इस साइड भी, बिकॉज यहाँ पर बुद्धा स्टैचू है। एंड ये बिल्डिंग एक बॉक्स की तरह ना लगे इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ओपन अटैच रखे ताकि बाहर के साथ कनेक्शन हो। एंड या एंड ये रूफ प्लान है ट्रीटमेंट ब्लॉक का। मैंने रूफ को यूज करने के लिए सनबाथ एरिया सबसे ऊपर दिया है। These are the sections and elevations of treatment block. ये sections हैं, डबल हाइटेड एरिया ये है एंड ये है। तो यहाँ से स्टेयर्स चढ़कर यहाँ पर एक छोटी सी बालकनी स्पेस दी है जहाँ पर एक सिटिंग स्पेस है एक ट्री के साथ। एंड ये डबल हाइटेड है वेटिंग एरिया जो फुल है। उसके बाद क्लियर स्टोरी विंडोज हैं ट्रस में एंड किंग पोस्ट ट्रस डिजाइन है। एंड ये प्रीमियम मसाज हट्स हैं। मसाज रूम्स ट्रीटमेंट ब्लॉक के अंदर भी हैं जो लो बजट के लिए हैं, जो हाई बजट है वो प्रीमियम मसाज हट्स मैंने बाहर दी हैं उसकी अलग। एंड स्विमिंग पूल दिया है। यस, ये मेरा रेजिडेंस ब्लॉक का ग्राउंड फ्लोर प्लान है। डबल हाइटेड एरिया है एंट्रेंस पर, रिकॉर्ड रूम है, एक साइड लाइब्रेरी है एंड नेचुरोपैथी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं जिनका बजट लो होता है और जिनका बजट हाई तक जाता है। सो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने 3 कैटेगरीज में रूम्स डिवाइड किए हैं। फर्स्ट जो डॉर्मेटरीज हैं फीमेल्स की और मेल्स की। एंड उसके बाद एग्जीक्यूटिव रूम थोड़ा हाई बजट का होता है। उसके बाद प्रीमियम रूम्स हैं जिसके साथ बालकनी और वरांडा अटैच्ड है। सो ये 3 टाइप्स ऑफ रूम कैटेगरीज इसमें प्रोवाइडेड हैं। रेजिडेंस ब्लॉक रिक्रिएशनल रूम दिया है, लॉन्ड्री सर्विसेज है, सत्संग रूम है जो इनसाइड भी है और ओएटी वगैरह में भी हो सकता है एंड फिटनेस रूम दिया है। उसके बाद मैंने जितनी केस स्टडी की है उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं लाइक ब्यूटी रूम एंड सलून फॉर बॉयज। सो वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद ऊपर एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं एंड प्रीमियम रूम्स हैं एंड दिस इज द courtyard planning, roof plan and sections of residence block, the blocks of sections. So basically ये भी courtyard planning मैंने ली है residence block के लिए। एंड जो ट्रस डिजाइन है इसमें भी होप ट्रस है बिकॉज इसका भी स्पैन कम है, बट ट्रीटमेंट एंड ओपीडी ब्लॉक का थोड़ा ज्यादा स्पैन था तो उसके लिए मैंने किंग पोस्ट ट्रस ली थी। सो यस, द एलिवेशंस ऑफ रेजिडेंस ब्लॉक very simple and hut like architecture.
ये मैंने डाइट सेंटर बनाया है एंड नेचुरल मटेरियल लिया है बैम्बू, उसके साथ इसकी कंस्ट्रक्शन की है एंड रूफिंग के लिए टेराकोटा टाइल्स यूज की है। सिटिंग स्पेस है एंड किचन एरिया है। पीछे से रैम्प्स हैं ताकि जो स्टोरेज आएगी वो इस साइड से आएगी एंड प्रिपरेशन एरिया अलग है और सर्विंग एरिया अलग है और बाहर सिटिंग एरिया प्रोवाइड किया है ओपन। The top cover, clay tiles and bamboo beam tying with rope. So ये bamboo construction है and this is the principal rafter. So ये छोटी सी डिटेल है bamboo की, bamboo construction की and roofing की। ये cottages हैं for the VIP persons and ये ground floor plan है and ये roof plan है। These are the sections of cottages. These are the elevations of cottage. This is the blob of Hope Trust design details. Some other details of foundation and roofing, and it is the cross section of roof landscape which is provided on the OPD and treatment block. ये साइट मैनेजमेंट की 3 टेक्निक्स बताई हैं, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सीवरेज मैनेजमेंट। जो स्टॉर्म वाटर होता है, मैंने एलिवेशन ले ली है एडमिन ब्लॉक एंड एग्जीबिशन ब्लॉक की, उसके थ्रू दिखाया है कि हम स्टॉर्म वाटर को कैसे यूज कर सकते हैं। वाटर रन ऑफ पाइपिंग से होता हुआ कलेक्शन टैंक में जाएगा, उसको हम मेन टैंक से फिर उसके बाद हम गार्डन वाटरिंग, हॉरिकल्चर, टॉयलेट्स एंड यूटेंसिल्स क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। एंड देन एक सेक्शन के थ्रू मैंने दिखाया जो ग्रे वाटर होता है, जो बेदिंग का और वॉश बेसिन से जो आता है वाटर, वो ग्रे वाटर को हम कलेक्ट करके उसको ट्रीट करते हैं। जो स्टॉर्म वाटर होता है उसको हम सीधा यूज कर सकते हैं फिल्टर करके, बट जो ग्रे वाटर होता है उसको हम ट्रीट करके यूज कर सकते हैं। सो ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली मैंने जो कैंपस दिया है, वो एक तो पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा एंड जो फ्रेशनेस ऑफ एयर है उसको पूरी साइट पे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बिकॉज ट्रीज है एंड जो साइट है पूरी अच्छी होगी, उसकी जो ब्रीदिंग स्पेसेस हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, जो मेरी साइट है वो 8 एकर्स पर जो ट्रीज ही हैं, सो मैंने उन ट्रीज को जो उनका वेस्ट होगा उनको यूज किया है बायोगैस प्लांट देकर, जो कि हम यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड सोलर पैनल्स की डिटेल दी है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं, वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं और 25+ ईयर्स उनकी लाइफ होती है। उसके बाद बायोगैस प्लांट में ये होता है कि एक स्लरी बनती है इनलेट चैम्बर में, उसके बाद एक एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है और एनारोबिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है एंड उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है, तो वो बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। These are my 3D views: spiritual paths, entrance view, pergola design, entrance of pergola, diet center views, parking area. So now I played my walkthrough.
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एट द लास्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नेचुरोपैथी में जो भी आता है वो यहाँ से ये सीख कर जाता है कि अपनी आगे की लाइफ को हेल्दी कैसे बना सके। थैंक यू सो मच।